Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to start our new chapter, that is data structures. Again, a very important chapter according to your board exam point of view also. इसमें आपका board exam में question आता है either from stack or from queue. In this video, we are going to discuss introduction of data structures, stack and queue, and what are the various operations that can be performed on stack and queue. So now, without wasting our time, let's start our today's video. But video को start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए. और अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने कमेंट्स को शेयर भी जरूर करें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. So now let's start with our topic, that is data structures. अब before starting or introducing this term data structure, first of all tell me कि आप लोगों का जो स्टडी टेबल होता है, आप लोग पढ़ने बैठते हो, काफी सारी बुक्स होती हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से अरेंज करते हो उनको. डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आप अपने बुक्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हो. ये मुझे किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो नहीं लग रही है, ठीक है. ये तो ऐसे लग रहा है एक बुक उठाई, पढ़ी और ऐसे ही रख दिया. फिर उसके बाद मैंने सेकेंड सब्जेक्ट उठाया, उसको रीड आउट करा और बुक रख दी. अब अगर मुझे कोई बुक चाहिए, काफी सारी बुक्स ऐसे ही हो मेरे पास, तो it will be very difficult for me to search any book, right? So अगर मैं इसी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख दूं, इन सारे बुक्स को एक के ऊपर एक या किसी भी टाइप से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख दूं, आइदर सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दूं या क्लास वाइज, राइट, तो एक प्रॉपर वो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेरे पास क्या हो जाएंगी, ये सारे के सारे बुक्स, राइट. अब आपको पता है कि आपने सिर्फ इस एग्जाम्पल के साथ अपनी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को भी इंट्रोड्यूस कर लिया और यू कैन से आपने उसको समझ लिया. इट रिप्रेजेंट्स हाउ द डेटा इज स्टोर्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी. अब कंप्यूटर की मेमोरी में वी डोंट हैव दिस बुक्स एंड ऑल ना, सो वहां पर मेरे पास क्या होंगे, डेटा एलिमेंट्स. सो हाउ माय डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड और इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, दैट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. अ डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस अ मैकेनिज्म टू स्टोर, organize and access data along with operations that can be efficiently performed on the data. Basically in data structure what we have to do, हमारा जो भी data हो, जो भी elements हो, we have to store that in a proper manner. उसको organize करके रखना है so that मैं उसमें बाद में अपने कोई भी operations easily perform कर सकूं. Right? Now see the example. For example, string is a data structure. Data type भी है, right? String is my data type, string, list, tuple, dictionary. अब how can you say that it is a data structure? String variable में हम अपने elements, characters के form में store कर रहे हैं, तो वहां पर भी storage हो रहा है, right? So that means you can say a string is a data structure also. A string is a data structure containing a sequence of elements where each element is a character. हर एक element आपका क्या represent कर रहा है, character. On the other hand, list is a sequence data structure in which each element may be of different type. In list, we can have elements of different type also. For example, this is my list. First element is of integer type. Second element is of string type, right? And third element is of float type. So my list is also a sequential data structure which can store elements of different data types. We can apply different operations also on the list, like we can reverse the element of string, slicing operation can be done, counting of elements. These operations can be performed on list as well as string also. Hence, a data structure organizes multiple elements in a way so that certain operations on each element as well as the collective data unit could be performed easily. अगर मेरा सारा का सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा, so it will be very difficult or it will be impossible for me to perform various operations on that. Now, basically we are having two types of data structures जो आपकी main categories हैं, that is simple data structure and compound data structure.
Simple data structure, it can be of built-in data types like integers, real, characters, booleans. And compound data structure, further these are of two types, linear and non-linear. आपके कोर्स में जो डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों, दैट इज स्टैक एंड क्यू. सो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट. एंड अब अगर क्वेश्चन आ जाए इन 1 मार्क, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन स्टैक एंड क्यू. आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे डिफरेंसेस, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, बट वन सिमिलैरिटी इज आल्सो देयर. इफ इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क, what is the similarity between stack and queue? So the answer is stack and queue both are of linear data type, both are your linear data structure. और जो आपके करिकुलम में 2 मोस्ट पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज स्टैक एंड क्यू. अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर सम स्टूडेंट्स दिस मे बी वर्ड स्टैक इज वेरी न्यू टू देम. क्यू आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, राइट. इसी टर्म को हमने रिलेट करना है अपने रियल लाइफ से, तभी आपका कंसेप्ट एकदम क्या होगा, क्लियर. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अ स्टैक. फर्स्ट पॉइंट, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर and queue is also a linear data structure. Linear means data is organized in a sequential manner. Stack is a list of elements in which an element may be inserted or deleted at one end called the top of the stack. अब कुछ नई नई सी टर्म्स आ रही हैं, टॉप ऑफ द स्टैक, लीफो प्रॉपर्टी. ये सब एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं, राइट. अब इसमें काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहते हैं कि स्टैक इज माय लीफो प्रॉपर्टी और फीफो प्रॉपर्टी. नो नीड टू क्रैम दिस थिंग, ठीक है. सिंपली इसको अंडरस्टैंड करो, यू विल बी एबल टू नो कि स्टैक इज माय लीफो और फीफो प्रॉपर्टी, राइट. नाउ स्टैक क्या होता है, मेरे पास ये एक बुक है, लेट्स सपोज इंग्लिश की. इसके ऊपर ही मैंने अबव दैट बुक आई हैव प्लेस्ड अनदर बुक, अबव दिस बुक आई हैव प्लेस्ड अनदर बुक, अबव दिस बुक आई हैव प्लेस्ड अनदर बुक. एक के ऊपर हम एक बुक्स रख रहे हैं, वो आपका क्या फॉर्म हो जाता है, स्टैक. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक ऑफ बुक्स. एक के ऊपर एक मैंने बुक रखी, राइट. अब जब मैंने एक फर्स्ट बुक रखी, सेकेंड बुक मैं उसी के ऊपर रख रही हूँ, राइट. मीन्स ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट बुक को हटा करके नीचे सेकेंड बुक रख रही हूँ, नो, राइट. तो यहाँ पर आप देखो तो ये मेरे फर्स्ट नंबर पे मैंने इसको रखा था, प्लेस किया था, दिस वन, देन दिस इज एट सेकेंड, देन दिस इज एट थर्ड एंड दिस इज एट फोर्थ. ये सारे की सारी मैंने एक ही एंड से रखी है बुक्स. उस एंड को हम क्या बोलते हैं, दैट एंड इज नोन एज टॉप एंड. अब अगर मुझे बुक प्लेस करनी है, वहीं टॉप से प्लेस करूंगी, रिमूव करनी है तो वो भी हम टॉप से ही करेंगे, एक ही एंड है मेरे पास. नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मुझे 1 by 1 बुक्स को रिमूव करना है, द फर्स्ट बुक जो मुझे रिमूव करनी होगी वो कौन सी होगी, दिस वन विद मैरून एंड दिस वन दैट इज ग्रे शेड. फर्स्ट वाली करेंगे जो सबसे ऊपर रखी है. अब जो सबसे ऊपर बुक रखी हुई है वो मैंने लास्ट में प्लेस करी है ना. जब मैंने बुक्स को रखा है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने मैरून रखी, देन ब्लैक, देन दिस ब्लू एंड देन दिस ग्रे, राइट. अब इसको जब मैं रिमूव करूंगी तो फर्स्ट वन विल बी द दिस ग्रे वन, तो दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो स्टैक कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, लीफो प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, like this. So this is known as stack. अब हम अपनी definition पर आते हैं. Now stack is a list of elements in which an element may be inserted or deleted at one end called the top of the stack. In stack we are having only one end and that end is known as the top end or top of the stack. Both the operations, that is insertion as well as deletion, has to be performed from one end only and that is known as top end. एक ही एंड से इंसर्शन होगा, एक ही एंड से डिलीशन होगा. इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. लीफो प्रॉपर्टी यू कैन से. लीफो मीन्स द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट वुड बी द फर्स्ट टू बी डिलीटेड. इतनी सारी एक के ऊपर एक बुक्स है, सबसे पहले कौन से रिमूव करोगे, जो लास्ट में प्लेस करी है, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. दिस वी हैव डन. Now these are some more examples of stacks, stack of pebbles, stack of chapatis, stack of coins. Similarity सब में यही है बच्चा, linear data structure है, एक के ऊपर एक elements को हम लोग उसमें place करेंगे. अब मेरे पास एक न्यू टर्म्स आ जाती हैं, operations on stack. Operations means अब ये मेरे पास जो elements थे हमने एक के ऊपर एक place किया. What are these? These are the operations on stack.
अब ऑपरेशंस आपको पता है कौन कौन से किए, इंसर्ट करे एलिमेंट और रिमूव करे एलिमेंट, राइट, इंसर्शन एंड डिलीशन। अब बस दो नई टर्म्स डिवाइस हो गई, इंट्रोड्यूस हो गए, दैट इज पुश एंड पॉप। पुश मीन्स किसी चीज को धक्का देना, तो दैट मीन्स वी आर इंसर्टिंग द एलिमेंट, पॉप मीन्स रिमूविंग द एलिमेंट, राइट। So there are mainly two types of operations that can be done with stack, that is push and pop. Push means insertion of an element on top of the stack is called push. This is my stack. You can see this picture in your right hand side. This is my top end. And from top end we are inserting the element, that means we are pushing the element in a stack. And pop means removing an element from the top of the stack. This is my stack. From the top I am removing the element. This is known as pop operation. Push and pop operations are done from single end and that end is known as the top end. Let's understand it with the help of an example. अब मेरे को एक लिस्ट गिवन है बच्चों, एलिमेंट्स है, 5 elements are there, 24, 56, 5, 9 and 2. Now initially my stack is empty. Now this is the push operation. Push operation I have to perform. Initially my stack is empty, so my first operation is I have to push 24. तो 24 यहाँ पर आ गया. Then my operation is push 56. अब 24 के ऊपर हम क्या प्लेस कर देंगे, 56. Then push 4, इसके ऊपर 4 आ गया, then 9 and then 2. At the end हमारा stack जो है वो क्या हो गया, full हो गया, right? Now next is the pop operation. अब pop means removing the element. इसमें तो जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना था दैट मस्ट बी नोन टू मी कि मुझे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, बट डिलीशन के टाइम पे तो मुझे नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है. वी जस्ट हैव टू रिमूव द टॉप एलिमेंट. अब सी दिस एग्जांपल. अब इसमें सिर्फ हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे. व्हाट विल बी द एलिमेंट दैट विल बी फर्स्ट रिमूव फ्रॉम द स्टैक, 2 और 24, 2, राइट. रीजन बीइंग दैट स्टैक फॉलोज माय LIFO प्रॉपर्टी, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. सबसे लास्ट में कौन सा इनपुट हुआ बच्चों, 2, तो सबसे पहले रिमूव कौन सा होगा, 2. पॉप 2, then 9, then 4, then 56 and then 24. At the end your stack will be empty, right? Now two conditions are there, that is overflow case and underflow case. Now आपने ये overflow term तो जरूर सुनी है. Overflow means कोई एक्सेस हो जाना किसी चीज का, राइट. अब ओवरफ्लो क्या है, लेट्स सपोज मेरे लिस्ट का साइज है 5, दैट मींस वी कैन इंसर्ट मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स इन माय लिस्ट. अब जब मैं 6th एलिमेंट इंसर्ट करने जाऊंगी, वी कैन नॉट इंसर्ट दैट एलिमेंट. रीजन बीइंग दैट बच्चों द स्टैक इज फुल, तो आई कैन नॉट इंसर्ट मोर देन दैट ऑफ एलिमेंट्स. अंडरफ्लो मींस रिवर्स ऑफ दैट. इफ माय स्टैक इज एम्प्टी वी कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. अब ओवरफ्लो में मेरे पास ना एक कंडीशन आ जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ पाइथन. नाउ रीड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वन ट्राइज टू पुश एन एलिमेंट इन अ स्टैक और क्यू दैट इज फुल. ओवरफ्लो कंडीशन कि आपका स्टैक या क्यू जो भी डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज फुल एंड यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू दैट. बट इन पाइथन फॉर स्टैक एंड लिस्ट implemented for stack and queue implemented as list, since list can grow. in Python हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों कि मेरी लिस्ट का साइज इतना होगा, इतने ही एलिमेंट मैं इसमें इंसर्ट कर सकती हूँ. सो ओवरफ्लो केस कब होगा, ओवरफ्लो कंडीशन डज नॉट अराइज अंटिल ऑल मेमोरी इज एग्जॉस्टेड. जब तक मेरे कंप्यूटर की मेमोरी फुल नहीं हो जाती मेरे पास ओवरफ्लो का केस नहीं आएगा, स्पेशली इन केस ऑफ पाइथन. अगर मैं बाकी लैंग्वेजेस की बात करूं तो देयर वी आर हैविंग द रिस्ट्रिक्शन कि while declaring the data type we have to specify the size of that data type also, size of that variable, इस वेरिएबल में कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स वी कैन स्टोर. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. सो ओवरफ्लो कंडीशन इज वेरी रेयर कि दैट विल अकर इन योर पाइथन, बट अंडरफ्लो केस जरूर हो सकता है. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वन ट्राइज टू पॉप or delete an element from an empty stack or queue. If my stack is empty or my queue is empty, so further we cannot delete any element from it. So if we are trying to delete that element from the empty stack or queue, then that is known as underflow case, right? Now next is queue data structure. Now see the very first point, queue is my linear data structure.
Queue is a list of elements in which insertion takes place at one end called the rear end. अब इसको भी समझने से पहले एक रियल लाइफ का एग्जांपल और सिनेरियो देखते हैं. What do you mean by this term queue? टीचर्स आप लोगों को बोलते हैं वॉक इन अ क्यू, स्टैंड इन अ क्यू, दैट मीन्स इन अ लाइन. काफी सारे एग्जांपल्स है बच्चों क्यू के. आप लोग टिकट बुक कराने जाते हो, वहां पर भी क्यू में आप लोग खड़े होते हो सारे. ठीक है, सिनेमा हॉल, रेलवे बुकिंग काउंटर इन बैंक, रेलवे बुकिंग काउंटर या फिर बैंक में आप लोग जाते हो तो वहां पर आपका क्या होता है, सिंपल क्यू. नाउ क्यू बेस्ड ऑन माय फीफो प्रॉपर्टी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मींस जो सबसे पहले आएगा द फर्स्ट वन दैट विल बी द फर्स्ट वन टू गो. फॉर एग्जांपल दिस इज माय टिकट काउंटर, 3 पर्सन्स आर देयर. ठीक है, दिस इज नॉन एज रियर एंड, दिस इज नॉन एज फ्रंट एंड. ये भी हमें बताते हैं व्हाट इज रियर एंड एंड व्हाट इज फ्रंट एंड. ठीक है, अब वन बाय वन ये पर्सन्स आए यहाँ पर टिकट ली. ठीक है, अभी काउंटर क्लोज है तो ये भी यहीं पर दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, राइट. अब देखो जो पर्सन है ये यहाँ पीछे से आए, दैट मीन्स फ्रॉम द रियर एंड. सो इन क्यू इंसर्शन इज बीइंग डन एट द रियर एंड, राइट. नाउ अब इन्होंने टिकट ले ली. सबसे पहले कौन आया था, दिस ग्रीन वन, देन येलो एंड देन रेड. अब टिकट लेने के बाद सबसे पहले कौन सा जाएगा, ग्रीन वन. जो पहले आया था दैट विल बी द फर्स्ट वन टू गो. अदरवाइज तो लड़ाई हो जाएगी ना कि अगर रेड वाला सबसे एंड में आए और सबसे पहले टिकट लेकर चला जाए, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी इमरजेंसी केस, राइट. सो आफ्टर दैट दिस येलो वन एंड देन एट द एंड दिस लास्ट वन. सो दैट मींस क्यूब इज बेस्ड ऑन माय फीफो प्रॉपर्टी, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. Q is a list of element in which insertion takes place at one end, that is called as the rear end, and deletion takes place only at the other end called the front end. Deletion कहाँ से हो रहा है बच्चों, फ्रंट से, और insertion from the rear end. दोनों ही end डिफरेंट है. स्टैक में मेरे पास एक ही एंड था and that end is known as the top of the stack, whereas in Q we are having two ends, rear end and the front end. And it is based on the principle of FIFO property, that is first in first out. FIFO means the first item inserted is the first one to get removed, right. This is the front end from where the elements get removed. Now next is insertion from the operations on the Q. So we are having two basic operations on Q, that is NQ and DQ. सिर्फ दो टर्म्स न्यू है बच्चों. स्टैक में क्या था, पुश, that means element insert करना, whereas in Q inserting an element is known as NQ, and जब आप element को delete करोगे Q में से, that is known as the DQ. These are the various operations on Q. आपके syllabus में clearly mention है all these operations. NQ, DQ is empty, peak and is full, right. Now first we will start with NQ. NQ is used to insert a new element to the queue at the rear end. Queue में element को अगर हमें insert करना हो, और insertion कहाँ से होगा, at the rear end. So this operation is known as NQ. We can insert elements in the queue till there is space in the queue for adding more elements. Inserting elements beyond the capacity of the queue will result in an exception known as overflow case. Remember that overflow and underflow case जो अभी हमने discuss किया है. Next is DQ operation. DQ is used to remove one element at a time from the front of the queue. Deletion कहाँ से होगा, from the front, right? और element को remove करना है तो that is known as DQ. We can delete element from a queue until it is empty. Obviously, if my queue is empty or stack is empty, so we cannot delete the elements further. We can delete elements from a queue until it is empty. Trying to delete an element from an empty queue will result in the underflow case. Next is empty. अब जहां पर भी word is आ जाए, that means we are checking. अब क्या check करना है, empty, कि whether my queue is empty or not. Is empty is used to check whether the queue has any element or not. अगर queue में कोई भी element नहीं है, that means that is empty. Otherwise उसमें element है तो queue is not empty. ये सारे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टैक और क्यू का. प्रोग्रामेटिकली पूरा पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे, तब आपको वहां पर ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बच्चों. अब इसमें सपोज अगर मुझे करना हो, लेट सपोज मेरे पास एक लिस्ट है बच्चों, इसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं. सो इफ आई वांट टू चेक कि वेदर माय क्यू इज एम्प्टी और नॉट, मुझे क्या करना पड़ेगा,
if length of L double equals to 0, right? तो अगर मैं लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट इज 0, दैट मीन्स वो क्या है, एम्प्टी है, अदरवाइज नहीं है. नेक्स्ट इज पीक. Peek is used to view the elements at the front of the queue without removing it from the queue. Front of the queue means जहाँ से एलिमेंट को आपने डिलीट करना है, जो फ्रंट पर होगा एलिमेंट, राइट? उसको हमने चेक करना है विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू. इन DQ ऑपरेशन, दैट मीन्स while deleting the element, DQ ऑपरेशन में we are deleting the element from the queue. But in peek, we are only checking the element or viewing the element, that is the at the front end of the queue. We are not removing any element here in case of peek operation. Next is full. Is full, again is आ गया तो that means it will check. अब क्या check करेगा ये? Is full is used to check whether any more elements can be added to queue or not to avoid the overflow case. We don't need to implement is full condition obviously, as Python being a dynamic language does not ask for the creation of list having fixed size. हम पाइथन में अपने लिस्ट का साइज फिक्स नहीं करते हैं, hence we will never encounter a situation when the queue is full. तो आपका ये is full आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे पास इसमें लिस्ट का साइज हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते. Now let's understand this twin example. Suppose we are having a list of items which is to be inserted in the queue of size 5. ये आपको इंडेक्स गिवन है. Insertion from rear end and deletion from the front end. Insert 24, then 56, 4, 9 and 2. अब Q is based on my FIFO property, first in, first out. अब आपने ये नहीं देखना कि रियर एंड जब मैम ने एक्सप्लेन किया था तब इधर था, फ्रंट एंड इस तरफ था, राइट? वैसे मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, बट आपने ये भी चेक करना है साथ में कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हुआ, 24. सो दिस 24 इज द फर्स्ट वन टू गेट रिमूव. आफ्टर दैट 56 वी हैव इंसर्टेड, सो नेक्स्ट एलिमेंट व्हिच इज टू बी रिमूव्ड इज 56. इस तरीके से वन बाय वन एलिमेंट्स को हम लोग डिलीट करेंगे और एट द एंड आपकी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी. एंड फ्रॉम द एम्प्टी क्यू वी कैन नॉट डिलीट द एलिमेंट्स, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इनटू एन अंडरफ्लो केस, राइट? So I hope data structure, stack and queue are clear to you. And now let's study the differences between stack and queue. Again, a very important from your exam point of view also. Similarity ध्यान रखना बच्चों, there are two similarities between stack and queue. Both are my linear data structure and both can be implemented using list. Now let's understand the differences between stack and queue. Stack is based on my LIFO property, that is last in, first out. Whereas queue is based on FIFO property, that is first in, first out. In stack, insertion and deletion of elements takes place at the one end only, and that end is known as the top of the stack. Whereas in queue, insertion is being done from the rear end and deletion is done from the front end. In stack, while inserting an element, it is known as push operation, and removing an element from the stack is known as pop operation. Whereas in queue, if we are trying to insert an element, that operation is known as NQ, and removing an element from the queue is known as DQ, right? So I hope with this difference and जो भी हमने explain किया है, all your concepts are crystal clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. अगर वीडियो पसंद आए स्टूडेंट्स तो उसको लाइक जरूर करना, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग कि जिससे मुझे ये पता लगता है कि आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही हैं. अगर वीडियोस पर लाइक कम होते हैं तो जहाँ मुझे सोचना पड़ता है कि हाँ इसमें शायद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. अगर आपके जो भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. बट अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. In our next video, we will discuss how to implement stack using list in Python. Practically इसका program करेंगे. Till then, keep watching, keep studying.